Assalamualaikum, Assalamualaikum everybody and welcome back to my channel. How are you guys doing? I hope you're all doing really good. I hope आप सब लोगों का रमज़ान भी बहुत अच्छा जा रहा होगा. आज जो है I brought to you guys a very interesting and fun video, or this video all revolves around Eid clothes from what you already have. Now Eid is literally right around the corner. आज 27th रोज़ा है, so maybe हमारे पास एक दिन रहे, 2 दिन या एक दिन in a way, नहीं 2 या 3 दिन रह गए हैं before Eid actually happens. कैमरा फोकस नहीं कर रहा था तो उसको फोकस करवा लिया है. ईद पर यूजुअली मैं ट्राई करती हूँ, नॉट टू एवरी, हर ईद पर नहीं मगर मोस्ट ऑफ ईद्स पर मैं ये ट्राई करती हूँ कि इट्स नॉट नेसेसरी टू बाय अ न्यू आउटफिट एवरी ईद. एंड व्हाट आई यूजुअली डू इज़, कभी कभार मामा या दादा दादी कहते हैं यार एक ड्रेस ले आते हैं वो लोग, तो आई जस्ट वेयर दैट. और बाकी दिनों पर आई मिक्स एंड मैच माई ओल्ड ईद आउटफिट्स और वट एवर अदर क्लोथ्स आई हैव and make it into something new. So because government ने हमें इस pandemic के against कहा हुआ है कि we should stay home and try not to go out as much. Quarantine में हम सब लोग हैं, lockdown पर थे मगर lockdown अब काफ़ी हद तक remove हो चुका हुआ है. फिर भी I decided that it's best to keep ourselves and our family and everyone safe. It's better that we don't go out to buy more clothes. So today I'm going to show you guys what you can wear from what you already have. Let's get on with the video. Okay guys, so this is the first outfit. This outfit I got stitched for my welcome, and this is a simple raw silk black color का ये जो है dress है और साथ plain trousers हैं इसके साथ black color के ही, और साथ इसके ऊपर मैंने ये सीक्वेंस वाला गाउन स्टिच करवाया है. इफ यू कैन सी फ्रॉम द बैक एज वेल, दिस इज द वे इट इज़. यहाँ पर इसकी हुक्स भी हैं एट डिफरेंट पॉइंट्स. इफ़ यू वांट आप बंद करके भी कर सकते हैं, खुला भी रख सकते हैं. अभी ऑब्वियसली आयरन नहीं है उस तरह, लेकिन दिस इज़ हाउ इट इज़. आई एम गोइंग टू पेयर दिस आउटफिट विथ दीज earrings. These are green tussle earrings. And इस ड्रेस के साथ आई एम नॉट गोना बी वेयरिंग एनी नेकलेस, क्योंकि इटसेल्फ अगर आप खुला भी छोड़ते हैं तो फिर पहन सकते हैं, बट आई एम नॉट गोइंग टू बी वेयरिंग एनी earrings, एनी नेकलेस विद इट फॉर नाउ. बट यू वांट आप कर सकते हैं. ओरिजिनली इस ड्रेस के साथ मैंने जो जूते पहने थे वो ये हैं. These are stiletto red heels that I got from Marie Claire probably 2 years ago जब मैंने ये स्टिच कराया था, और इस ड्रेस के साथ ये जूते परफेक्ट गए थे. So yeah guys, these are the shoes I wore with the dress. Now if I want मैं इसको इसी तरह जो ये ओरिजिनल है वैसे भी पहन सकती हूँ. मैंने बहुत दफ़ा ये ड्रेस पहना भी है डिफरेंट ओकेजन्स पर. I really love this dress. लेकिन if you're bored of wearing the same thing, I'm going to show you what you can do to kind of change it a little bit. Wear different shoes with it. I have black shoes, different types of black shoes that I can pair this with as well. I can wear different jewelry, meaning आप इसी के साथ different shoes, different jewelry के साथ you can mix and match and change it into something else as well. लेकिन if you don't want to wear the same thing, आपके पास घर में कोई भी और गाउन पड़ा हुआ हो जो ब्लैक के साथ चल सकता है, wear that. Let me show you what you can do. Okay guys, so this is option number 2. Now here I had this gown that my mom bought. ये गाउन खाली इसी तरह था आया, मामा को बहुत पसंद आया because of this beautiful embroidery जो इधर इसके corners पर हुई भी है. तो she got this and मैंने इसको, Sorry if you can hear the dogs barking. पता नहीं क्यों neighbors के dogs जो हैं वो बहुत bark करते हैं, बहुत तंग करते हैं. But we're gonna let the video continue even if they keep barking. She got this, खाली था ये. मैंने इसको आज तक नहीं पहना, मुझे कभी occasion नहीं मिला पहनने को. मैंने कहा इस ईद पर we're gonna change things a little bit and we're gonna wear this. Now बहुत खूबसूरत है ये. इसकी insides पर जो है
पिंक कलर का, बेबी पिंक कलर की लेस लगी हुई है और यहाँ से इसका स्लिट जो है वो ओपन है। इस ड्रेस के साथ मैंने ये वाले इयररिंग्स जो हैं वो सेलेक्ट किए थे, रियली प्रिटी। ये प्राइमार्क के हैं, गोल्डनिश सा पिंकिश सा इसका कलर है और ये इस ड्रेस के साथ परफेक्ट गए हैं। अगेन इफ़ यू वांट आप इसके साथ नेकलेस पहन सकते हैं, मैं फ़िलहाल नेकलेस नहीं पहन रही। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ द शूज़ दैट यू कुड वेयर विद दिस ड्रेस। इस ड्रेस के साथ मैं ये वाले जूते जो हूँ वो पेयर कर रही हूँ। बहुत क्लासी से खूबसूरत से एक ब्लॉक हील के साथ ये जूता है और ये जूता मैंने अभी रिसेंटली ही ख़रीदा है, मामा लेकर आई थी। ये हील्स से ख़रीदा हुआ है। सो मैंने अब ये जूते पहन लिए हैं। अब आई होप आप लोगों को जूते नज़र भी आ रहे हों। एंड दीज आर रियली ब्यूटिफुल, रियली कंफर्टेबल शूज़ और इससे इतना एक एलिगेंट लुक आ जाती है पूरे ड्रेस पर। अभी जो मैं आपको दिखा रही हूँ दिस इज़ मोर ऑफ फॉर्मल वेयर, लेकिन साथ साथ आई विल शो यू गाइस हाउ यू कैन चेंज योर फॉर्मल ड्रेस इनटू समथिंग अ लिटिल सेमी फॉर्मल और अ लिटिल कैजुअल इफ़ यू वांट, क्योंकि अगेन वी ऑल गोना बी एट होम, कहीं बाहर हमने जाना नहीं है, तो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, एंजॉय करने के लिए यू कैन चेंज अ फॉर्मल आउटफिट इनटू सेमी फॉर्मल एंड इवन कैजुअल। तो अभी the two options that I showed you with this silk trouser and shirt were these two gowns and these heels. The third option that I'm going to show you with this dress is going to be this. Okay, so literally the only thing I changed for outfit number 3 was I added a printed colorful dupatta to this dress. Now you can literally take any dupatta you have, any printed colorful dupatta that you have. I had this available right now, so I'm literally just using this. You can literally use any dupatta that you want and you can literally wear it any way you like. So these were the 3 options I showed you guys on what you can do with just a simple kurta and a trouser. A simple plain thing and turn it into 2 formal wears and 1 a little semi-formal. मेरी नज़र में ये थोड़ा सा semi-formal है. You can evenly change it if you want, and like you can do anything with anything. ठीक है? So these were the 3 options I showed you guys with this. Now let's move on to the next dress. Okay guys, so this is outfit number 4. This outfit is a shirt that my mom got for me from Aga Noor. ये मैंने लिया था एक शादी के लिए, probably what I think a year ago, maybe 2 years ago, I don't remember. लेकिन this is a simple frock type shirt जो मैं Aga Noor से मामा लेकर आई थी और ये एक सिंपल सा फ्रॉक है जिसके ऊपर गोल्डन एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। Number 4 that you can wear, इसके साथ you can wear any shoes. You can wear the red heels that I showed before, or you can literally, I can wear like some flats with it. Literally anything can go with it. क्योंकि इसके साथ नज़र तो ऐसा आना नहीं है, तो you can literally wear it with anything. और इसके साथ अगेन मैंने जो इयररिंग्स पहने हैं वो मैंने अभी तक पहले वाले ही इयररिंग्स पहन कर रखे हुए हैं, एंड दैट इज़ दीज वंस। एंड ये इसके साथ बहुत अच्छे चले जाते हैं, बट यू कैन लिटरली पेयर विद एनी इयररिंग्स यू वांट। नाउ ये ऑप्शन नंबर 4 है। दिस इज अगेन अ फॉर्मल वेयर। हाउ यू कैन चेंज दिस इनटू समथिंग अ लिटिल कैजुअल। किसी भी चीज़ के साथ आप जीन्स पहन लें तो वो सेमी फॉर्मल टू अ कैजुअल लुक दे देगी। तो आई एम गोइंग टू पेयर दिस विद सम ब्लू डेनिम जेगिंग्स। ओके गाइस, तो दिस इज outfit number 5 from outfit number 4. I literally just paired it with some blue denim jeggings और इसकी मैंने ends थोड़े से fold कर लिए हैं, and you have the best semi formal semi casual outfit. Like इसके साथ if you want आप heels पहन सकते हैं, but I feel like कि इनके साथ heels इतनी अच्छी नहीं लगेंगी, तो I'd probably wear some flats with it. Maybe some beige flats would look really good with it as well. And again, earrings मैंने इसी तरह के इसके साथ पहने हैं because it looks good. लेकिन इस outfit के साथ now if you wear something blue तो अच्छा लग सकता है because of the jeans.
So let me go and change it into some blue earrings if I have any. Okay, so I came back wearing my blue and gold earrings. मैंने ड्रॉर खोली और सामने मुझे नजर आया, I'm like ये इसके साथ अच्छे लग सकते हैं, even though this shade of blue is different, लेकिन अच्छे फिर भी। साथ मैंने इसके साथ ये दो ब्रेसलेट्स, अगर ये नज़र आ गया तो मैंने ये पहने हैं, अगर आप लोगों को नज़र आ रहा है तो these are the bracelets I matched with this, और as a whole ये आपका बन गया एक semi casual semi formal dress. Now let's move on to option number 6 dress पर चलेंगे, I think so. Let's go. Okay guys, so we are back with option number 6 and इस option number 6 जो है मैं categorize करूँगी as semi formal semi casual because again I paired it with the same blue denim jeggings that I wore with the red dress. अब ये जो dress है this I got from Pindi. I think last ईद पर मामा ने खरीद कर दिया था and simple सा ये है, plain एक कुर्ता और साथ इसके ऊपर गोल्ड एम्ब्रॉयडरी और कुछ बीड्स पर्ल्स लगे हुए हैं, और इसके साथ अगेन अभी मैंने फ़िलहाल के लिए वही ब्लू वाले इयररिंग्स जो हैं पेयर किए हैं और वही ब्रेसलेट्स पहने। यू कैन पेयर ज्वेलरी वट एवर ज्वेलरी यू वांट विद वट एवर। ये वाली जो ज्वेलरी है ये मैंने दराज से मंगवाई थी, ये आज ही बल्कि आई है, थैंकफुली ईद से पहले ही आ गई है। और ये वाले इयररिंग्स मुझे सच्ची में याद नहीं आ रहे मैंने कब लिए थे और कहाँ से लिए थे, मगर बहुत पुरानी बात नहीं है। एंड आप जैसे देख सकते हैं कि माई हेयर स्टाइल फॉर एवरी आउटफिट इज़ द सेम। आई हैवंट डिसाइडेड कि मैं हर आउटफिट के साथ कैसा हेयर स्टाइल करूँगी, नीदर हैव आई डिसाइडेड येट कि मैं कौन सा जो हूँ आउटफिट पहनूँगी। तो वो मोस्ट प्रॉबली मैंने ईद का व्लॉग बनाया तो आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने किस आउटफिट के साथ क्या हेयर स्टाइल किया और मेकअप क्या किया। फिलहाल मैंने सिंपल सा मेकअप किया हुआ है, थोड़ा सा ब्लश लगाया हुआ है, मस्कारा है, एंड आई हैव लिटिल बिट ऑफ सम लिप ग्लॉस ऑन मी, बट या सो इसके साथ आई एम गोइंग टू बी पेयरिंग सम plain flat pumps नहीं plain flat sandals type you can say that I got from Gul Ahmed. So these are the shoes that I'm going to be wearing with this outfit. ये जो है beige color के हैं लेकिन इस ड्रेस के साथ बहुत अच्छे लगेंगे। साथ मैंने ये वाले जूते पेयर कर लिए हैं एंड आई होप आप लोगों को नज़र आ ही रहा हो, लेकिन ये मेरा आउटफिट नंबर 6 जो है हो गया है, जिसको मैंने कैटेगराइज किया है एज सेमी फॉर्मल सेमी कैजुअल। लेट्स मूव ऑन टू आउटफिट नंबर 7 that I'm going to make from the same shirt and turn it into a formal outfit. Okay, now we are back with outfit number 7. Outfit number 7 ये है कि I paired this shirt with this glitter गरारा. You can tell I'm really into gararas these days, but yeah, this again was not with this. इसके साथ एक plain trouser था, उस टाइम I didn't want to get a trouser, मैं गरारा लेना चाह रही थी तो ये मैंने glitter गरारा खरीद लिया था। I could wear my trusty old these earrings that I've worn for the past few times. I can go with no jewelry at all as well. Now guys, this is it for all my formal wear. The black ones, the 2 black gowns and the red agano dress, and then this dress are it for my formal type wear. So I've shown you 3 outfits that you could wear with that are formal. Now I'm going to show you guys some other semi-formal outfits. मैं आपको अभी तक 3 semi-formal outfits दिखा चुकी हूँ। एक वो जो सिल्क कुर्ता और ट्राउजर था विद ग्रीन दुपट्टा, एक ये विद द ब्लू जीन्स और एक रेड विद द ब्लू जीन्स। तो अब चलते हैं कुछ आप लोगों को और दिखाती हूँ सेमी फॉर्मल अटायर। ओके गाइस, आई एम बैक, कपड़े मैंने चेंज कर लिए हैं एंड नाउ दिस इज माय सेमी फॉर्मल अटायर। सेमी फॉर्मल अटायर के लिए मुझे कपड़ों को थोड़ा सा कट डाउन करने में डिफिकल्टी हो रही थी बिकॉज आई हैव सो मेनी ऑप्शंस फॉर यू गाइस। सेमी फॉर्मल के लिए ये वाला जो ड्रेस है ये मैंने पिछली ईद पर ख़रीदा था, ये दादी ने ख़रीद कर दिया था, आई थिंक बड़ी ईद पर मैंने लिया था। और ये सिंपल जो है सिर्फ शर्ट और दुपट्टा था, ये लाइमलाइट से मैंने ख़रीदा था और इसके साथ मैंने अगेन
एक सिंपल ब्लैक ट्राउजर को पेयर किया है एंड अगेन दोस बो टाई हील्स, बूट्स कहने लगी थी, हील्स हैं। अगेन इसके साथ मैंने अपने बालों का अभी वही स्टाइल रखा हुआ है, पहले इसको मैं फोकस कर लूँ, फोकस हो जाओ, फोकस हो गया। वही मैंने हेयर स्टाइल रखा हुआ है, मैंने अपने बाल कर्ल किए हुए हैं। इसके साथ जो है मैं इयररिंग्स जो पेयर करने लगी हूँ वो ये वाले हुप्स हैं। आई होप आप लोगों को नज़र आ रहे हों। ये हुप्स मैंने फॉरएवर 21 से लिए थे जब मैं दुबई गई थी, वहाँ से मैंने ये हुप्स खरीदे थे एंड ये हुप्स बहुत मुझे पसंद हैं। अगर आप चाहते हैं तो इसके साथ यू कैन लिटरली पेयर सम फ्लैक्स विद दिस ड्रेस इज वेल, लेकिन मैंने कहा कि थोड़ा सा इस पर एक डिफरेंट टच देने के लिए मैंने हील्स पहन लिए हैं और ये मेरे जो है इयररिंग्स भी आ गए। ब्रेसलेट्स अगेन वही वाले हैं अभी मैंने पहने हुए हैं, गोल्ड जो मैं दराज से लिए थे एंड बाल वैसे के वैसे हैं। खोलना चाहें खोल लें, आप इसको दुपट्टे के बगैर पहनना चाहें दुपट्टे के बगैर भी पहना जा सकता है। मैं आई वुड पेयर इट विद सम चोकर, क्योंकि इसकी पहले कढ़ाई काफ़ी ज़्यादा हुई हुई है तो इसके साथ एक नेकलेस पहनने का कोई तुक नहीं बनती, ठीक है। साथ ये वाले मैंने जूते पहन लिए हैं बिकॉज मुझे जूते पसंद बहुत हैं। लेकिन या दिस इज़ आउटफिट नंबर 8 आई थिंक, I've lost track. Let's go on to the next outfit. Okay guys, तो this is outfit number 9. ये मैंने खरीदा था ईस्ट ब्रेकआउट से और इसके साथ मैंने अभी फ़िलहाल पेयर किया हुआ है रेड ट्राउज़र, लेकिन इसके साथ अगर आप ब्लू जीन्स जो है वो पेयर करना चाहें तो कर सकते हैं, इसके साथ बहुत 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 अच्छा लगेगा। लेकिन मैंने इसको अभी ट्राउज़र के साथ ही किया हुआ है क्योंकि मुझे ट्राउज़र के साथ थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लग रहा था, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट कलर देने के लिए अगर आप ब्लू पहनेंगे तो वो भी बहुत, एक तो ये मेरा फोकस जो है ना ये लूज़ कर जाता है, जिसका मेरा माइंड लूज़ हुआ जा रहा है ना इस वक्त वो हो जाएगा, लेकिन इसके साथ ब्लू पहनेंगे तो वो भी बहुत अच्छा लगेगा बिकॉज आप एक कॉन्ट्रास्टिंग कलर दे देंगे। इसके साथ ये बेल टिश्यू के, आई थिंक इस मटेरियल को टिश्यू ही कहते हैं, मैंने पहने हुए हैं, इसके बाजू बने हुए हैं और इसके साथ मैं जूते पेयर करूँगी। अगेन वही मेरे फ्लैट्स एंड फिलहाल मैं पहनूंगी नहीं क्योंकि मैं थक गई हूँ वीडियो फिल्म कर करके, लेकिन यू गेट द पिक्चर कि आप इस ड्रेस को कैसे बना सकते हैं। अब चलते हैं हम आउटफिट नंबर 10 पर, आई सपोज। लेट्स गो। आउटफिट नंबर 10 ही था ना, जो भी नंबर है समझ जाएं आप लोग। ये जो ड्रेस है ये मुझे एज ए बर्थडे गिफ्ट मिला था फ्रॉम माई दादी। ये मुझे मिला था, ये खरीदा था बुनांजा सतरंगी से। इसके साथ ये बहुत खूबसूरत ट्राउज़र है जिसकी एंड पर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है और लिटरली ये जो है इस ऑप्शन को मैं ऐसे ही रख रही हूँ क्योंकि इसके साथ पेयरिंग की कोई ऐसे मुझे ख़ास ज़रूरत नहीं लग रही बिकॉज़ ये एज अ होल बहुत खूबसूरत है। इसके साथ जूते आप अगेन वही जो मैंने पहले गुल अहमद वाले पहने थे हर वीडियो। मेरा माइंड ख़राब होना शुरू हो गया है, दिमाग ख़राब हो गया है, कपड़े चेंज करके दिखाकर फिर चेंज कर नए पहनकर फिर उनको कर फिर अलमारी में रखना, क्योंकि अगर मैंने ना किया फिर गंद हो जाएगा इन दी एंड ऑफ द वीडियो तो बहुत तंग करेगी बात मुझे। लेकिन एनीवेज मैंने इसको किसी चीज़ के साथ पेयर नहीं और उस तरह किया। इयररिंग्स के साथ जो है, अब अगेन मैं जो बात बार बार आपको बता रही हूँ, यू कैन लिटरली वेयर एनी ज्वेलरी विद इट। मैं अभी उन्हीं इयररिंग्स के साथ जो हूँ प्ले कर रही हूँ बिकॉज आई डोंट वांट कि मैं ढेर सारे इयररिंग्स निकालूँ करूँ। इसमें वीडियो का मेन मकसद ये है कि अगर आपके पास सिर्फ 3 इयररिंग्स पेयर्स ऑफ इयररिंग्स हैं तो आप उन तीनों इयररिंग्स को कैसे चला सकते हैं किस ड्रेस के साथ। बेसिक मकसद यही है, इसलिए मैं ढेर सारी चीज़ें जो हैं उस तरह नहीं दिखा रही सिवाय आउटफिट्स के। जूते भी मेरे वो 3 पेयर्स हैं, एक वो रेड हील है, एक ब्लैक है और फिर एक वो बेज वाले मेरे जूते हैं जो मैं आप लोगों को दिखा रही ताकि आप लोग मिक्स एंड मैच कर कर सकते हैं। इवन तो इस ड्रेस में कोई मिक्स मैच नहीं हुआ बिकॉज ये ऐसे ही है, लेकिन मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि it is okay to wear the same dress again and it's okay to wear something you already have। ठीक है, तो ये मेरा आउटफिट नंबर 10 था। इसके साथ अगेन अगर मैं चाहूँ तो मैं ये वाला इयररिंग्स
बहुत अच्छे मैच करेंगे इसके साथ। ऑन टू आउटफिट नंबर 11। अब मेरे पास 11 उंगलियां नहीं है तो दिस इज 11। Guys, outfit number 11 is this really pretty light green pastel colored कुर्ता। साथ यहाँ पर इसकी लगे हुए हैं। अब आप लोगों को इस पॉइंट तक आइडिया हो चुका होगा कि कपड़ों पर क्या चीज़ें लगती हैं, लेकिन अगेन बाल वैसे ही हैं। मैंने इसके साथ ये वाले जूते पेयर किए हैं। ये जूते मैंने मलेशिया से ख़रीदे थे। वाइट गोल्ड और ब्लैक कलर की ये ब्लॉक हील टाइप जूता है। एंड आई थॉट कि इसके साथ ये बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि ये जूते जो है ना बहुत ही यू कैन से कंफर्टेबल से हैं और ये फॉर्मल में भी पहने जा सकते हैं, मगर मुझे जो है अच्छा बेहतर लगा कि ये सेमी फॉर्मल आउटफिट के साथ ज़्यादा अच्छे जाएंगे, तो मैंने इसके साथ ये वाले जूते पहन लिए। सिंपल सा ये ड्रेस है। बैक इसकी प्लेन है, जिस तरह आगे काम कपड़ा है वैसा ही, और कुछ उस पर वो नहीं है। बॉर्डर भी इसका बिल्कुल सिंपल सा है और बाजू भी सिंपल से हैं। और इयररिंग्स मैंने इसके साथ कोई नहीं पहनी। पहनने का दिल चाहा तो अगेन आई विल वेयर माई ट्रस्टी इयररिंग्स। ये पहनी जा सकती हैं, किसके साथ शायद ग्रीन भी चली, ग्रीन भी चली जा सकती है वैसे। बाय दिस टाइम यू कैन टेल कि थक चुकी हूँ मैं, बिकॉज अभी बज रहे हैं सिर्फ 10:30, लेकिन फिर भी मैं थक चुकी हूँ। और अगेन मैंने इसके साथ वही ब्रेसलेट्स पहने हुए हैं, बिकॉज वेयर व्हाट यू हैव, उन्हीं चीज़ों में से, कम चीज़ों में से ढेर सारी ऑप्शंस बनाने का कमाल मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ आज। तो ये मेरा आउटफिट नंबर 11 था। अब मेरे पास 3 आउटफिट्स रह गए हैं जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, और ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी होगी बाय दिस टाइम। इफ यू स्टिल वाचिंग, हाय, आई एम ग्लैड यू स्टेड। अब चलते हैं आउटफिट नंबर 12 के पास। आउटफिट नंबर 12। अच्छा, तो ये जो है मैं पहले बताना भूल गई, जो मैंने अभी ग्रीन वाला आप लोगों को ड्रेस दिखाया था, और ये PWD में मैंने एक शॉप देखी थी, आई थिंक इसको सलूनी, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट। मैंने वहाँ से ये वाले ख़रीदे थे दोनों। ये जो है बहुत खूबसूरत पिंक, मुझे ना इससे वो मुगल ज़माना जो है ना याद बहुत ज़्यादा आ रहा था इस ड्रेस से, तो मैंने ख़रीद लिया। क्या मतलब, मामा ने ख़रीद कर दिया था और उनके साथ गई हुई थी मैं। और इसके साथ पिंक कलर का सिंपल प्लेन ट्राउज़र मैंने मैच किया हुआ है, और इसके साथ अगेन मैं जो हूँ अपने वो गुल अहमद वाले प्लेन फ्लैट्स पहनूंगी, बिकॉज व्हाई नॉट, अच्छा लगता है उसके साथ। अगेन वही वाला ब्रेसलेट, और इसके साथ टू बी ऑनेस्ट अगर मेरे पास अभी वो चोकर इधर अवेलेबल नहीं है, लेकिन मेरे पास एक चोकर है गोल्डनिश सा कलर का, उसके साथ गोल्डन और पिंकिश सा लाइट पिंक कलर का वो है, तो आप उसके साथ वो मैं पहन लूँगी अगर मैंने इस ड्रेस को पहना। तो ये आउटफिट नंबर 12 था। आउटफिट नंबर 13 के पास चलते हैं, एंड फिर उसके बाद सिर्फ एक और आउटफिट रह जाएगा जो मेरे लिए थोड़ा सा डिफरेंट होगा। मैंने कभी ऐसे कपड़े पहने नहीं पहले, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। तो मैं चलती हूँ आउटफिट नंबर 13 पर, और उसके बाद अपना आखिरी आउटफिट आप लोगों को दिखाती हूँ। तो अगर आपको लग रहा है मैं बार बार यहाँ देख रही हूँ और वहाँ नहीं देख रही, इसलिए क्योंकि यहाँ पे मैंने अपनी वो स्क्रीन शेयर की हुई है लैपटॉप पर, तो मुझे पता चल जाता है कि मैं फोकस में हूँ या नहीं हूँ, तो इसलिए मैं बार बार इधर देख रही हूँ और इधर नहीं देख रही। आउटफिट नंबर 13 पर चलते हैं। आउटफिट नंबर 14, आई डोंट रिमेम्बर। ये आउटफिट जो है मामा ने स्टिच करवाया था, ये उनकी अपनी डिज़ाइनिंग है, उन्होंने स्टिच कराया था। ये मैंने अपने चाचा की शादी पे पहना था, प्रॉबली 4-5 years ago, आई डोंट इवन रिमेम्बर। तो ये काफ़ी पुराना मेरा ड्रेस है, लेकिन मैंने कहा कि क्यों ना इसको अभी भी पहने। इसको मैंने पहले पेयर किया था ग्रीन कलर के लहंगे के साथ, जो मैंने पहना था, आई थिंक लहंगा था या ट्राउज़र था, मुझे नहीं याद, लेकिन मैंने इसको फ़िलहाल जो है पेयर किया है अपनी ब्लू जेगिंग्स के साथ, और ये इसके साथ बहुत अच्छी लग रही हैं। ब्लू डेनिम के साथ मैंने इसको किया है पेयर। इसके साथ मैं अगर मैंने ये ड्रेस पहना तो इसके साथ मैं मोस्ट प्रॉबेबली जो हूँ अपने आप वो गुल अहमद वाले जूते ही पहनूंगी, बिकॉज अच्छे लगते हैं। और इसके साथ मैं नेकलेस कोई नहीं पहनूंगी, लेकिन अगर मैंने इसके साथ इयररिंग्स पहने तो मैं कोई छोटे इयररिंग्स पहनूंगी, लंबे नहीं।
बस मुझे इसके साथ लंबे इतने अच्छे नहीं लगेंगे। आई फील लाइक इसके साथ छोटे इयररिंग्स जो है ना वो ज़्यादा अच्छे लगेंगे। इसके साथ आप गोल्ड कलर के पहन लें तो बहुत अच्छे लग सकते हैं, बिकॉज इसके ऊपर जो है गोल्ड का हल्का हल्का इफेक्ट आ भी रहा है और उसमें है भी, तो वो पहनेंगे, पहना जा सकता है। और ये एक सिंपल सा है, पीछे प्लेन इसका बैक, इसकी बैक है, और ये वो ड्रेस है। और अब चलते हैं अपने आखिरी ड्रेस पर। आई थिंक इट्स आउटफिट नंबर 15। तो लेट्स गो। ये वाला जो है ना मेरा रिसेंटली डेवलप्ड फेवरेट क्लोथिंग स्टाइल बन चुका हुआ है, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि वो कैसा लगता है। अभी चेंज last outfit for the day, and this is my newly favorite style of clothes to wear, and that is boss lady style. तो ये I have this tucked in blue collared shirt and I have some grey dress pants. मुझे black dress pants मिल नहीं रही थी, मैंने इसके साथ grey dress pants पहन ली। और I mean मुझे ऐसे कपड़े जो है ना वो रिसेंटली बहुत ज़्यादा पसंद आने शुरू हो गए हैं, तो इसलिए मैंने कहा कि इस ईद पर थोड़ा सा डिफरेंट पहनना अगर चाहें तो बंदा ये भी पहन सकता है, बिकॉज अगेन ये भी बहुत ही एक मज़े का आउटफिट है। मेरी नज़र में तो बहुत मज़े का है, मुझे तो बहुत पसंद है इस तरह का ये। और इसके साथ जूतों की अगर बारी आए तो आई हैव ज़ीरो क्लू कि मैं इसके साथ जूते कौन से पहनूंगी। शायद मैं इसके साथ अगर ट्राई करूँ तो अपने वो रेड बो वाले हील्स पहन लूँ। ब्लैक वाले इसके साथ नहीं अच्छे लग रहे इतने, बिकॉज ग्रे है इसके साथ, और ब्लैक जो है वो बस इतना अच्छा नहीं लग रहा था उसके साथ। तो लिटरली आई थिंक इसके साथ मैं अगर कोई अपने जॉगर टाइप जो जैसे एडिडास के सुपरस्टार्स होते हैं उस तरह के जूते पहन लूँ वाइट वाले, तो शायद वो अच्छे लग सकें। आई डोंट नो एग्जैक्टली अगर उसके साथ अच्छे लगेंगे भी या नहीं। लेकिन गाइज दिस वाज द फाइनल आउटफिट फॉर टुडे। इसके साथ मैंने ज्वेलरी नहीं कोई पहनी अभी, कोई ब्रेसलेट्स हाथ में थे मैंने वही रखे हुए हैं, लेकिन आई डोंट नो कि मैं इसके साथ एग्जैक्टली ज्वेलरी कौन सी पहनूंगी। बट या गाइज दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच गाइज फॉर स्टेइंग टिल द एंड। अगर आप लोग ले रहे हैं तो थैंक यू वेरी मच। आई रियली आई एम हैप्पी दैट यू स्टेड। इस दफ़ा ईद जो है इट्स प्रॉब्ली नॉट प्रॉब्ली इट्स ऑब्वियसली गोना बी डिफरेंट बिकॉज ऑफ द होल पैंडेमिक, एंड इट्स बेटर कि वी डोंट गो आउटसाइड एंड स्टे इनसाइड। अपने घर के अंदर ही जो फैमिलीज़ हैं उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, गेम्स खेलें, उनके साथ कुकिंग कर लें। There's like a million things that you could do staying inside with your family on this Eid। इसलिए प्लीज़ गाइज सबको सेफ रखने के लिए, स्पेशली अपने आप को और अपनी फैमिली को सेफ रखने के लिए बाहर मत जाएं। अगर आपका जाना बनता भी है तो प्लीज़ प्रॉपर जो SOPs हैं उनको मेंटेन कर कर जाएं, जैसे ग्लव्स पहन कर जाएं, मास्क पहने, 6 फीट का डिस्टेंस रखें अपने दूसरे बंदे के साथ, और अपने हाथ सैनिटाइज और धोते रहें ताकि एवरीवन सेफ। एंड दैट इज़ इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। आई होप आप सब लोगों को कुछ ना कुछ आइडिया, कोई ना कोई हेल्प ज़रूर मिली होगी फ्रॉम दिस वीडियो कि आप क्या पहन सकते हैं, क्या कर सकते हैं। And I hope you guys enjoyed this video. Make sure you like this video, comment down below what you guys are planning on doing on Eid. Share this video with your friends and family so that they can get some ideas as to what to do on Eid if they can't go out to buy anything. Subscribe to my channel and please turn the post notifications on so that you guys get updated or notified every time I upload a video. Stay safe, enjoy. This is Rinam Asad signing off. Khuda Hafiz.